محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. ادارہ جاتی ایم ایل سی ضمن انتخابات کی مد نظر تمام تیاریاں مکمل. پولنگ مراکز پر بیلٹ پیپر منعقد. جمعہ کو ہوگی پولنگ. تیاریوں کا الیکشن آبزرور ضلع کلکٹر و سی پی کارتکیہ نے لیا جائزہ. بی جے پی کا ایک اور خلا ہوا ڈھیر. بودھن ایم پی ٹی سی کی رکن اسمبلی شکیل عامر کے ہاتھوں ٹی آر ایس میں شمولیت. تمام اراکین ٹی آر ایس امیدوار کے کویتا کی جیت پیش کی. جشن کا کیا اہتمام. پی یو سی کمیٹی چیئرمین و عالمی رکن اسمبلی جیون ریڈی کی شہرت میں اضافہ. سوشل میڈیا 2 لاکھ فالوورز کی تعداد ہو گئی پار. ملک و ریاست میں امن و ضبط کی برقراری میں پولیس کی کارکردگی اہمیت کی حامل. پولیس ٹریننگ سینٹر میں سول کانسٹیبل پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اختتامی تقریب سے پولیس کمشنر کارتکیہ کا خطاب. ان لاک 5 کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے رہنمایانہ ہدایت جاری. 1 نومبر سے کالجز کا آغاز. 100 افراد کی شرکت کے ساتھ مذہبی، سیاسی اور شادی تقاریب کے لیے اجازت. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. بی جے پی سے تعلق رکھنے والے بودھن ایم پی ٹی سی نے رکن اسمبلی شکیل عامر کے ہاتھوں ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی. ٹی آر ایس خیمے میں خوشی کی لہر. بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں ادارہ جاتی ایم ایل سی انتخابات کے مد نظر ٹی آر ایس پارٹی قائدین کی جانب سے نظام آباد سابق رکن پارلیمنٹ کے کویتا صاحبہ ایم ایل سی انتخابات میں کامیابی کو 100% یقینی مانتے ہوئے شاندار پیمانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کی گئی. اس موقع پر دیگر قائدین نے کہا کہ ادارہ جاتی ایم ایل سی انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کی عددی قوت 600 سے زائد ہونے پر عوامی نمائندوں اور ٹی آر ایس پارٹی قائدین کی طرف سے سابق رکن پارلیمنٹ کے کویتا صاحبہ کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی رہائش گاہ میں خوشیوں کی تقریب منائی گئی. اس طرح سے بودھن منڈل کے موضع کلدرکی کے ایم پی ٹی سی شریمتی سنگم لکشمی راجنا بی جے پی پارٹی سے ٹی آر ایس پارٹی میں رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی موجودگی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی ترقیاتی کاموں اور رکن اسمبلی بودھن کی خدمات سے متاثر ہو کر ٹی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں ٹی آر ایس قائدین، سرپنچ، ایم پی ٹی سی و کارکنان کی بھاری تعداد نے شرکت کی. جمعے کو ایم ایل سی کی انتخابی جنگ. تمام انتظامات مکمل. ضلع کلکٹر 824 کی منجملہ 24 ووٹرز کرونا پازیٹو، لیکن 4 تا 5 بجے کے اوقات کار میں ووٹ حق سے استفادے کی سہولت. ریاستی چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی دختر و سابق رکن پارلیمان نظام آباد کے کویتا مقابلے میں شامل. ایم ایل سی انتخابات کے جمعہ کو رائے دہی منعقد ہو رہی ہیں. ایم ایل سی انتخابات میں ٹی آر ایس سے کے کویتا، کانگریس پارٹی سے سبھاش ریڈی اور بی جے پی سے لکشمی نارائنا امیدوار ہے. ضلع ریٹرننگ آفیسر کلکٹر سی نارائن ریڈی نے بتایا کہ ایم ایل سی انتخابات کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. نظام آباد اور کاماریڈی اضلاع سے تعلق رکھنے والے 824 ووٹرز، جن میں نظام آباد میونسپل کارپوریشن کے 60 کارپوریٹرز، کاماریڈی، بودھن، آرمور، بھیمگل بلدیات کی کونسلرز، سرپنچ، زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی کے منجملہ 824 ووٹر حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے. ایم ایل سی انتخابات میں حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کرنے والے ووٹرز کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، جن میں 24 ووٹرز کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں، لیکن ان ووٹرز کو 4 تا 5 بجے کے اوقات کار میں حق رائے دہی سے استفادے کی سہولت دی گئی ہے. ضلع کلکٹر و ریٹرننگ عہدیدار سی نارائن ریڈی نے بتایا کہ نظام آباد ضلع کے 400
43 वोटर्स के लिए जिले में 28 राय दही मराकज़ और कामारेड्डी जिले के 341 वोटर्स के लिए जिले में 22 राय दही मराकज़ कायम किए गए हैं। जिले रिटर्निंग अहदेदार नारायण रेड्डी के मुताबिक तमाम वोटर्स की राय दही मरकज पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हक राय दही से इस्तीफादे का मौका दिया जा रहा है। एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के 570 वोटर्स है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 152, बीजेपी को सिर्फ 78 वोटों की अक्सरियत हासिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टीआरएस की तायद का ऐलान किया है, जबकि 24 आज़ाद वोटर्स शामिल हैं। तमाम राय दही मराकज़ पर कोविड कवायद के तहत इंतजामात किए गए हैं। राय दही के पेश नज़र दोनों अजला में आला पुलिस अहदेदारों की रास्ते निगरानी में सियानती बंदोबस्त को खतियत दी गई है। एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस के 570 वोटर्स और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीआरएस को तायद के ऐलान के बाद टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के कविता की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। एमएलसी इंतखाबात बैलेट पेपर पर कराए जा रहे हैं। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी बहुत ही कम अरसे में अवामी मकबूलियत हासिल कर फेसबुक के फॉलोअर्स में 2 लाख से ज्यादा का इंसाफ पार करते हुए रिकॉर्ड कायम करने पर इनके चाहने वालों ने किया खुशी का इजहार। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी अवाम के मसीहा और एक हरकियाती कायद के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं और इनके हर काम एक दिलकश अंदाज से पाए तकमील को पहुंचता है। इसीलिए वो बहुत ही कम उम्र में 2 मरतबा रुकन असम्बली बनने का एजाज हासिल करने के साथ रियासती वज़ीर आला केसीआर, निजामाबाद साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता साहिबा और रियासती वज़ीर केटीआर की मदद से अपने हल्के को तरक्की की जानिब गामजान करते हुए अवाम को अपना शहदाई बनाते हुए आज फेसबुक फॉलोअर्स में 2 लाख का हिस्सा पार कर रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और इन्हीं की बदौलत आर्मू हल्के में पहली मरतबा कई स्कीमात और कई तरक्याती कामों को सबसे पहले शुरू किया गया, जैसे रजिस्ट्रेशन का दफ्तर, रेवेन्यू डिवीजन और 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल और पहले मरहले के तौर पर मिनी स्टेडियम का क़याम अमल में लाते हुए शहर के अवाम को साफ और शिफाफ पीने का पानी फराहम कर अवाम को अपना गर्वित बनाते हुए इनके दिलों पर राज करते हुए आज फेसबुक फॉलोअर्स में 2 लाख का हिस्सा पार कर अवाम के बेहतरीन कायद के तौर पर ताहयात तक अपनी छाप छोड़कर एक कारनामा अंजाम दे चुके हैं। सियासत में कविता की सरगर्म वापसी यकीनी, एमएलसी इंतखाबात से मुतालिक टीआरएस हल्कों में नया जोश। एमएलसी इंतखाबात से मुतालिक टीआरएस हल्कों में नया जोश। साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता की भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है। जैसे ही एमएलसी इंतखाबात का ऐलान हुआ, आर्मू डिवीजन में टीआरएस कायदीन अवामी नुमाइंदों में नया जोश महसूस किया जा रहा है। रुकन असम्बली आर्मू व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़यादत में बड़े पैमाने पर आर्मू हल्का असम्बली के एमपीटीसी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने बीजेपी से टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह बीजेपी को भारी धक्का पहुंचा है। रुकन पार्लियामेंट की कविता ने 2018 पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद अवाम से दूर थी, लेकिन कई गरीब अफराद के मसाइल की यकसी के अलावा गल्फ मुतासरीन की मदद करते हुए इन्हें इंडिया लाने में अहम रोल अदा किया। इसी तरह इनकी सियासत में वापसी पर अवाम बिलखुसूस माइनॉरिटी कायदीन और टीआरएस हल्कों में एक नया जोश का माहौल नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि इस इंतखाबात के पेश नजर आर्मू हल्का असम्बली वोटर्स, काउंसलर्स, एमपीटीसी, जेडपीटीसी और कई अवामी नुमाइंदों को इकट्ठा करते हुए कैंप में रखा गया है और साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता का भारी वोटों की अक्सरियत से कामयाब होना यकीनी है और कविता की सियासत में सरगर्म वापसी यकीनी हो गई है। मुसलमान जायदाद और अराजियात के सर्वे का बाइकाट करें, मौलाना जाफर पाशा और मुफ्ती अब्दुल गनी की अपील। सर्वे एनआरसी और एनपीआर की दूसरी शक्ल। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जफर पाशा ने मुसलमानों से अपील की है कि जायदादों और अराजियात से मुताल्लिक़ हुकूमत के सर्वे का बाइकाट करें। इन्होंने मज़कूरा सर्वे को एनआरसी और एनपीआर की दूसरी शक्ल से ताबीर किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए जाफर पाशा ने सर्वे में हासिल की जा रही तफसीलात के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब की है और कहा कि इस वक्त तक मुसलमान सर्वे के फॉर्म पुर ना करें। इन्होंने कहा कि जायदाद और अराजी के सिलसिले में मालिक मकान का नाम काफी होता है, लेकिन सर्वे में अरकान खानदान की तफसीलात तलब की जा रही है। अरकान खानदान के आधार और फोन नंबर की क्या जरूरत है? हुकूमत क्या हर घर का शुजरा तैयार कर रही है? पासपोर्ट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर पूछे जाने को गैर जरूरी करार देते हुए जाफर पाशा ने कहा कि जिस तरह मोदी हुकूमत ने बैंक अकाउंट में 15 लाख का वादा किया था, इस तरह केसीआर हुकूमत
हुकूमत भी क्या रकम जमा करेगी। इन्होंने कहा कि सर्वे दरअसल NRC और NPR की दूसरी शक्ल है और अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन्होंने वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव से कहा कि वो जो काम करना है इस पर तवज्जो दे, जिस काम की जिम्मेदारी नहीं इसमें दिलचस्पी ना दिखाए। बल्दी इंतखाबात करीब है और अगर हुकूमत की रोज बरकरार रही तो हमको कुछ फैसला करना पड़ेगा। हुकूमत की तायद करना है या मुखालिफत, इस बारे में फैसले पर मुसलमान मजबूर हो जाएंगे। इन्होंने सर्वे के बारे में हुकूमत से वजाहत का मुतालबा किया। मुफ्ती अब्दुल मुगनी मुजाहिरी ने कहा कि सर्वे में निजी मालूमात का उसूल NRC का हिस्सा मालूम होता है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर मज़ाहिब को भी सर्वे पर एतराज है। जिनकी जायदाद या मकान है इनकी तफसीलात रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मौजूद है। अरकान खानदान की तफसीलात की क्या जरूरत है। कई इलाकों में अवाम ने सर्वे का बाइकाट किया। ये दरअसल CAA, NRC और NPR की तरफ पेशकदमी है। इस मौके पर मुफ्ती गियास रहमानी भी मौजूद थे। नाज़रीन किराम, आज हम जिस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने बैठे हैं उसमें दो हज़रात हमारे जो खुसूसी तौर पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक तो हमारे मौलाना मुफ्ती मुगनी साहब है और हमारे दूसरे जो है मौलाना मुफ्ती गियास साहब रहमानी हैं। और मालूम हुआ है कि अभी नैयर साहब भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। आज जो हमारे सामने दो तीन अहम बातें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। पहले तो हमारे को बग़ैर इत्तला के, बग़ैर कोई ऐलान के ये ऐलान किया गया कि भाई डिटेल्स लेंगे ओनरशिप के, मकानों के जो ओनर हैं उनके हम डिटेल्स हासिल करेंगे। खैर ये डिटेल्स हासिल करने में हमको भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एतराज़ात की भी ज़रूरत है। और ये हुकूमत किसी न किसी बहाने से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि रियासती हुकूमत अपने आखाओं को खुश करना चाहती है और मरकज़ी हुकूमत के ताबे रहना चाहती है। चुनांचे इसमें जो पेश किए गए हैं वो तो बहुत से कालम है, उसमें जो हमको एतराज़ात है, पहला एतराज़ हमारा ये है कि इसमें हमारे से हमको कास्ट पूछा जा रहा है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपको घर की जो कुछ आपको उसके बारे में मालूमात करना है वो पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। मज़ीद आपको घर के बारे में तहक़ीक़ करने की ज़रूरत पहले पेश नहीं आना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तेलंगाना बन रहा था तो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी पूरे तेलंगाना के लोगों को शामिल किया गया था और तेलंगाना के लोगों का उसमें नाम लिखा गया था, बाज़ाब्ता नाम दर्ज हुआ था। अब यहाँ ये मज़ाहिब के नाम पर और ये कास्ट के नाम पर इसमें इजाफ़ा करना ये मानाक़ेज़ है। इसी तरीके से इसमें दूसरी एक जो ये हरकत की गई है उसमें आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं। आधार कार्ड नंबर की मैं जहाँ तक मेरे मालूमात है, मुझे ये इल्म है कि आधार कार्ड नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड से आप क्या साबित करना चाहते हैं। और DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने मुतहदा जिलों में धान के ज़ख़ीरे की खरीदी के मराकज़ का क़याम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। मुतहदा जिले के DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिले निज़ामाबाद में मौसमी बरसात की धान की कटौती शुरू होने के बाद बहुत जल्द धान के ज़ख़ीरे के लिए खरीदी के मरकज़ को रियासती वज़ीर इमारत शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी और मुतहदा अजला में रुकन असम्बली की निगरानी में शुरू करने के लिए इंतजामात किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि जिले निज़ामाबाद में PSCS के तहत 372 IDCM के जरिए
IKP 15 के तहत 37, हाका के तहत 1, मेपमा के तहत 7, मार्केट कमेटी के तहत 8, कुल मिलाकर 440 धान के जखीरे की खरीदी के मरकज रहेंगे और जिले कामारेड्डी में PSCS के तहत 995, IDCMS के तहत 19, IKP 15, मार्केट कमेटी के तहत 8, कुल मिलाकर तकरीबन 337 खरीदी के मराकज का क़याम अमल में लाए जाने का इंकशाफ करते हुए किसानों को उजलत में कम कीमत पर फरोख्त न करने के लिए कहते हुए हुकूमत की जानिब से धान के जखीरे की कीमत को A ग्रेड 1888, B ग्रेड 1868 मुकर्रर करने पर किसानों ने रियासती वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस दौर में तेलंगाना यूनिवर्सिटी का क़याम और तालीम को फ़रोग़, TRS इख्तितार में ज़िले निज़ामाबाद की तरक्की ठप, कांग्रेस कायदीन का बयान। जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, साबिक MLC भूपत रेड्डी, PPC सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर ने आज कांग्रेस भवन में सहाफ़ी से बातचीत करते हुए मुकामी इदारा जात के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के हक में वोट देते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की सूरत में मुकामी इदारा जात के नुमाइंदों की अहमियत में इजाफा होगा। वाज़ेह है कि भूपत रेड्डी पार्टी तब्दील करने के बाद इन्हें नाअहल करार दिया गया था, जिसकी वजह से ये ज़िमनी इंतखाबात लाजमी हो गए थे। इस मौके पर भूपत रेड्डी ने हुकूमत से 2 सवाल करते हुए कहा कि TRS इख्तितार में आकर 6 साल का अरसा हो चुका है और 6 सालों में मुकामी इदारा जात के नुमाइंदे मंडल परिषद के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए और न ही मुकामी इदारा जात के लिए फंड्स मंजूर किए गए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पेश करदा स्कीमात के तहत ही फंड्स जारी किए जा रहे। इन्होंने कहा कि TRS MLCs की हैसियत से निजामाबाद से जुमला 12 नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करते हुए मुतहद जिले के 250 करोड़ रुपए मंजूर करने का मुतालबा किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर इस नुमाइंदगी को खारिज कर दिया। जिले से 9 अरकान असेंबली और 4 MLCs होने के बावजूद भी जिले परिषद के लिए अभी तक 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया गया और जिले की तरक्की ठप हो गई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में तेलंगाना यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाते हुए तालीम को फरोग देने की कोशिश की गई और बड़े पैमाने पर फंड्स फराहम किए गए और यूनिवर्सिटी के हर शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात किए गए। हिंदुस्तान आज़मीन में उम्रों के लिए रबीउल अव्वल में वीज़ों की इजराई के इम्कानात नहीं, कोरोना से शदीद मुतासरा ममालिक के मोतमरीन को इजाज़त ना देने सऊदी हुकूमत का फैसला। माह रबीउल अव्वल में हिंदुस्तानी आज़मीन उम्रे के लिए सफरी सहूलतों के आगाज़ के इम्कानात नहीं और ना ही सऊदी हकाम की जानिब से हिंदुस्तानी आज़मीन को फौरी वीज़ों के इजराई के सिलसिले में अहकाम के इजराई के इम्कानात नजर आ रहे हैं। सऊदी हकाम की जानिब से 15 रबीउल मुनव्वर से दुनिया भर से मोतमरीन के लिए वीज़ों की इजराई का मंसूबा तैयार किया गया है, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिन ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद ज्यादा है, इन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को उम्रे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। माह रबीउल अव्वल की इब्तिदाई 2 हफ्तों के दौरान हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के दीगर ममालिक से लाखों की तादाद में मोतमरीन उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा और खातिमुल नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं। बताया जाता है कि इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हिज्जा में अय्याम हज में दुनिया भर से लाखों की तादाद में मुसलमान हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं और साल के दौरान हरमैन शरीफीन में माह रमजानुल मुबारक के दौरान देखा जाता है और इसके बाद माह रबीउल अव्वल में सबसे ज्यादा मोतमरीन की तादाद हरमैन शरीफ में हुआ करती है। लेकिन इस मर्तबा हिंदुस्तान से माह रबीउल अव्वल में उम्रे की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद तवील मुद्दत तक हरमैन शरीफीन को भी बतौर एहतियात बंद रखा गया था, लेकिन 2 यौम कबल सऊदी अरब के हुदूद में रहने वालों के लिए विज़रात उमूर हज व उम्रे की जानिब से उम्रे की खिदमात को बहाल किया गया है। उम्रे की खिदमात के आगाज के साथ ही हरमैन शरीफीन के ट्विटर के जरिए इस बात की इत्तला दी गई है कि 15 रबीउल अव्वल से दुनिया भर के उम्रे ख्वाहिशमंद के लिए वीज़ाओं की इजराई का अमल शुरू किया जाएगा, लेकिन जिन ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, इन ममालिक के ख्वाहिशमंदों को फिलहाल वीज़ों की
اجرائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق ہندوستانی عازمین عمرے کے لیے فوری خدمات کا آغاز کیے جانے کے امکانات نہیں ہے، اسی لیے عمرے پر روانگی کی خواہش مندوں کو عمرے کی بکنگ میں احتیاط کریں، کیونکہ سعودی حکام کی جانب سے جب تک اجازت نہیں دی جاتی اس وقت تک ہندوستانی عازمین عمرے کی روانگی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے کسی بھی طرح کی دھوکے دہی کا شکار ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے پاسپورٹ اور پیشکشی رقومات حوالے کرنے سے گریز کیا جائے۔ مذہبی، سیاسی اور شادی بیاہ تقاریب میں 100 افراد کی شرکت کی اجازت۔ ان لاک 5 کے تحت تلنگانہ میں رعایتوں کا اعلان، اسکول اور کالجز کی کشادگی پر بعد میں فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے کووڈ ان لاک 5 کے تحت مزید رعایتوں کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے GOMS کا 136 جاری کیا، جس کے تحت سماجی، تعلیمی، کھیل کود، تفریح، تہذیبی، مذہبی اور سیاسی پروگراموں میں 100 افراد کی شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ شادی اور اس سے متعلق دیگر تقاریب میں 100 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ تدفین اور آخری رسومات میں بھی 100 افراد کی شریک ہونے کی اجازت رہے گی۔ حکومت نے سوئمنگ پول جو کھلاڑیوں کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی 15 اکتوبر سے ٹریننگ کے لیے کھولنے کی اجازت دی ہے۔ جیو میں کہا گیا ہے کہ کنٹونمنٹ زونز کے علاوہ دیگر علاقوں میں تمام سرگرمیوں کی اجازت برقرار رہے گی۔ اسکولز اور کوچنگ اداروں کے آغاز کے سلسلے میں حکومت علیحدہ احکام جاری کرے گی۔ کالجز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آن لائن اور فاصلاتی تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ریسرچ اسکالرز اور پوسٹ گریجویٹ طلباء 15 اکتوبر سے ٹیکنیکل اور پروفیشنل سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ریاستی یونیورسٹیز اور خانگی یونیورسٹیز کے تحت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ریسرچ اسکالر اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کی شرکت کی اجازت رہے گی۔ سنیما ہالز، تھیٹرز، ملٹی پبلک تفریحی پارک اور دیگر تفریحی مقامات کی کشادگی کے بارے میں علیحدہ احکامات جاری کیے جائیں گے۔ بزنس ٹو بزنس ایگزیبیشن کی 15 اکتوبر سے اجازت رہے گی۔ مذہبی، سیاسی، تفریح اور دیگر سرگرمیوں کے موقع پر ماسک کا استعمال، تھرمل اسکیننگ، سماجی فاصلہ اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی رہے گا۔ 65 سال سے زائد عمر کے افراد، حاملہ خواتین اور 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انتہائی ضروری کام یا پھر صحت سے متعلق ضرورت کے تحت انہیں نکلنے کی اجازت رہے گی۔ کنٹونمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن 31 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ ضلع کلکٹر اور کمشنران پولیس و دیگر عہدیداروں کو گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت دی گئی ہے۔ رینجل منڈل موضع کلیا پور میں مانیہ شری مندا کرشنا مادیکا کے زیر اہتمام کینڈل مارچ نکالتے ہوئے عصمت ریزی و قتل کی واردات میں ملوث افراد کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریاست اتر پردیش کی ہاتھرس میں پیش آئے عصمت ریزی اور قتل کے خلاف رینجل منڈل موضع کلیا پور میں مانیہ شری مندا کرشنا مادیکا کے زیر اہتمام کینڈل مارچ نکالتے ہوئے عصمت ریزی و قتل کی واردات میں ملوث افراد کو پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر MRPS کے قائد بھومیا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کے ہاتھرس گاؤں میں والمیکی سماج سے تعلق رکھنے والی پسماندہ ذات کی لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل معاملے میں اتر پردیش کی حکومت کو فوراً برخاست کیا جائے۔ تیز مذکورہ مقدمہ سپریم کورٹ کے جج کی معرفت میں چلاتے ہوئے قاطی افراد کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس پروگرام میں یووا سینا انچارج پللا پروین، MRPS منڈل کنوینر بنڈارو پوشیٹی، کو کنوینر سائلو، MRPS سینئر قائد لکشمی گاری، بالاجی مادیکا، پللا موہن، گنگادھر، رمیش، راجو، سمن و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 2154 نئے کیسز، مزید 8 اموات۔ تلنگانہ میں کرونا وائرس کی جملہ تعداد اس وقت 2,04,748 ہو گئی، جبکہ 6 اکتوبر کو اس وائرس کے 2,154 نئے کیس درج کیے گئے۔ مزید 8 اموات کے بعد تاحال اس وائرس سے مرنے والوں کی جملہ تعداد بھی 1,149 ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ منگل کو مزید 2,239 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد تاحال مختلف دواخانوں سے ڈسچارج ہونے والوں کی جملہ تعداد 1,77,008 ہو گئی ہے۔ یہاں جاری کردہ بلٹن میں بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ میں کووڈ-19 کی صحت یابی کی شرح زائد 86% ہو گئی ہے۔ ریاست میں سرگرم کیسز کی تعداد 26,551 بتائی گئی۔ ان میں 21,864 ایسے افراد بھی ہیں جنہیں مکانات یا اداروں میں علیحدہ رکھا گیا ہے۔
बुलेटिन के मुताबिक मजीद 8 अमवात के बाद इस वायरस से ताहाल मरने वालों की तादाद 1189 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 303 नए केसेस सामने आए हैं। अजला, आदिलाबाद और जनगांव में हर जगह ये तादाद 23 रही। जिले भोदादरी कोतागोड़ा में 92, जिले जगतियाल में 45, जिले जयशंकर भोपालपल्ली में 25, जिले गढ़वाल में 19, जिले कामारेड्डी में 71, जिले करीमनगर में 96, जिले खम्मम में 121, जिले कमरम भीम आसिफाबाद में 16, जिले महबूब नगर में 40, जिले महबूबाबाद में 45, जिले मंचिरियाल में 39, जिले मेदक में 29, जिले मेरचल मलकाजगिरी में 187, जिले मलग में 25, जिले नागर कर्नूल में 33, जिले नलगोंडा में 124, जिले नारायणपेट में 12, जिले निर्मल में 19, जिले निजामाबाद में 60, जिले पेदापल्ली में 42, जिले राजौना सिलसिला में 41, जिले रंगारेड्डी में 205, जिले संगारेड्डी में 63, जिले सिद्दीपेट में 78, जिले सूर्यापेट में 79, जिले विकाराबाद में 28, जिले वनपर्ती में 31, जिले वारंगल रूरल में 28, जिले वारंगल अर्बन में 74 और जिले यादाद्री भुवनेश्वर में कोरोना वायरस के 38 नए केसेस सामने आए हैं। कल आईपीएल के 21वें मैच में कोलकाता ने चेन्नई को 10 रन से हरा दिया। आज आईपीएल का 22वां मैच पंजाब और हैदराबाद के दरमियान जारी। इंडियन प्रीमियर लीग का 21वां मैच कल चेन्नई और कोलकाता के दरमियान शेख ज़ायद स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कोलकाता टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 167 बनाए और 168 का टारगेट सेट किया, जिसको चेस करने आई चेन्नई टीम इस टारगेट को हासिल नहीं कर सकी और 157 रन ही बना सकी। कोलकाता ने इस मैच को 10 रन से जीत लिया और मैन ऑफ द मैच राहुल त्रिपाठी को दिया गया। इस आईपीएल का 22वां मैच हैदराबाद और पंजाब के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। कोटगी सरपंच को गिरफ्तार करने बोधन के सहाफियों का मुतालबा। प्रेस क्लब बोधन से वाबस्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के उर्दू तेलुगु सहाफियों ने बोधन डिवीजन के कोटगिर ग्राम पंचायत में सरपंच लक्ष्मण को फौरन गिरफ्तार करने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए बोधन में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। अम्बेडकर चौरास्ते से रैली की शक्ल में आरडीओ ऑफिस पहुंचकर आरडीओ को याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया है कि आंध्रा ज्योति रोजनामा कोटगिर के सहाफी हनुमंतलू ने सरपंच लक्ष्मण को मुबीना धांधलियों को मंजर-ए-आम पर लाने पर सहाफी हनुमंतलू पर कातिलाना हमला किया गया। सरपंच लक्ष्मण बहैसियत कॉन्ट्रैक्टर का काम अंजाम दे रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इन्होंने 3 साल कबल डबल बेडरूम मकानात की कोटगिर मुआवजे में तामीर का गुत्ता हासिल किया। मकानात तामीर किए बगैर 80 लाख के बिल्स उठाए गए, जिसको मंजर-ए-आम पर लाने पर सहाफियों को गाली गलौज, धमकियां और हमले किए जा रहे हैं। एहतजाजी धरने में सदर-नशीन बोधन प्रेस क्लब गंगुलू, सेक्रेटरी रवि कुमार, वासु कृष्णा, राजूलाल और उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के कायदीन खुर्शीद हुसैन अख्तर, अब्दुल कुद्दूस, रिजवान, इरफान अहमद खान, रफीक अहमद के अलावा सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। కోటగిరి మండల ఆంధ్రజ్యోతి విలేకరి హనుమాన్లుపై దూషణకు అనుచిత వ్యాఖ్యలకు పాల్పడి పత్రికను దగ్ధం చేసిన ఆ గ్రామ సర్పంచ్ పత్తి లక్ష్మణ్పై చట్టబద్ధ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బోధన్ కోటగిరి మండలాలకు చెందిన తెలుగు, ఉర్దూ, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్ట్ అంతా కూడా ఈరోజు బోధన్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టి ఇక్కడ ఆర్డీఓ ఏఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। जिले निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने सिविल कांस्टेबल तरबियत के मुकम्मल होने पर मुनाकिदा दीक्षित परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जिले निजामाबाद एयरपली पुलिस स्टेशन के अहाते में जानकम पेट के कमिश्नरेट तरबियती मरकज के पास साइबराबाद से सिविल कैटेगरी में कांस्टेबल के इंतखाब के लिए ट्रेफंड्री कैडेट ट्रेनिंग कांस्टेबल्स को 9 माह की तरबियत फ्राहम करने के साथ इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर 258 अफराद को आज दीक्षांत परेड, पासिंग आउट परेड प्रोग्राम मुनाकिद करने पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि पुलिस की मुलाजमत हासिल करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में शरीक होकर गुज़िश्ता 9 महीने से सख्त मेहनत के साथ तरबियत हासिल करके मुकम्मल करने पर इन्होंने तमाम अफराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में अमन व इत्तेहाद को कायम रखने के लिए पुलिस एक अहम किरदार अदा करने का इंकशाफ किया।
Very well done. Congratulations to all of you. Excellent parade. First of all, it was a very hard-working batch, particularly 2020. మీ అందరికీ తెలుసు, a very tough year. Police training itself చాలా tough ఉంటుంది. కానీ దీంతో పాటు there were so many issues in this year, health-related issues. And a special thanks goes to our unit doctor, Sarla Madam Garu and her team, that all of the cadets, all 258 cadets are able to participate today. Excellent work by the medical team and lot of determination and strength displayed by the entire batch. I congratulate all of you. You have shown the training lone meeru chupincharu. You are not ordinary policemen, you are super fighters. You are super cops from this day onwards. Welcome to the police family. On behalf of the entire Telangana Police, शहर के अखलती इलाके में सेंट्रल लाइन डिवाइडर्स काम आखिरी मरहले में डिवाइडर्स के दरमियान नस्ब किए गए पौधों के सबब खूबसूरती में इजाफा। अवाम की हिफाजत की गर्ज से और बोधन रोड पर हादसात की शरह में कमी लाने के मकसद से टीआरएस हुकूमत की जानिब से सड़क के दरमियान नए डिवाइडर्स तामीर किए गए और इसी तरह इन डिवाइडर्स को खूबसूरत बनाने व माहौलियाती आलूदगी को कम करने की गर्ज से शानदार पौधे दरमियान में नस्ब किए गए। ये काम अब अखलती इलाके से गुजरने वाली बोधन रोड पर भी पाए तकमील तक पहुंच चुके हैं और ये इलाके पर इन पौधों के साथ खूबसूरत मंजर पेश करा है जिससे अवाम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये काम काफ़ी तेज़ी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की खिदमत हुकूमत की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर आज मौजे मंथनी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के सदर हरकियाती सीनियर कायद नरसा रेड्डी ने की टीआरएस पार्टी में शमूलियत। आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की क़यादत में आज मौजे मंथनी से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के सदर सीनियर कायद नरसा रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर की मुनफरिद तरक्याती कामों और बेहतरीन स्कीमात से मुतासिर होकर टीआरएस पार्टी में रुकन असम्बली आर्मूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में दाखिल होने पर पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इदारा जाती एमएलसी ज़िम्न इंतखाबात की मद्देनजर तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग मराकज़ पर बैलेट पेपर मुनक़िद। जुम्मा को होगी पोलिंग तैयारियों का इलेक्शन ऑब्जर्वर जिले कलेक्टर व सीपी कार्तिकिया ने लिया जायजा। बीजेपी का एक और खिला हुआ ढेर। बोधन एमपीटीसी की रुकन असम्बली शकील आमिर के हाथों टीआरएस में शमूलियत। तमाम अराकीन टीआरएस उम्मीदवार के कविता की जीत पेश की। जश्न का किया एहतमाम। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मी रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की शोहरत में इजाफा। सोशल मीडिया 2 लाख फॉलोअर्स की तादाद हो गई पार। मुल्क व रियासत में अमन व ज़ब्त की बरकरारी में पुलिस की कारकर्दगी अहमियत की हामिल। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिविल कांस्टेबल पासिंग आउट परेड के इख्तितामी तकरीब से पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का खिताब। अनलॉक 5 के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना हिदायत जारी। 1 नवंबर से कॉलेजेस का आगाज। 100 अफराद की शिरकत के साथ मजहबी, सियासी और शादी तकारीब के लिए इजाजत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।